This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Pastor Persis Hanna. I will be preaching the message in English, but Pastor Persis will be translating it into Hindi. और सभी को जय मसीह की। इस सुबह में मैं आपके साथ पास्टर जॉन वेगिंस मिनेसोटा से, और मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is Born by Four, Born by Four. और आज का जो हमारा वचन का विषय है, शीर्षक है चार के द्वारा लिए जाना, और चार से जनित हम कह सकते हैं इसको। The key portion of scripture is Luke 5, verses 15 through 26, starting in verse 15. But so much more went there a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear. And he healed and be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which came out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. And behold, men brought a man which was taken with palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto them, Man, your sins are forgiven you. And the scribes and Pharisees began to reason, saying, Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason you in your hearts? Whether it is easier to say, Your sins be forgiven you, or to say, Rise up and walk. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man sick of palsy, I say unto you, arise, take up your couch, and go to your house. And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God, and they were filled with fear, saying, We have seen strange things today. और आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय के 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फारिसी और व्यवस्थापक जहां बैठे हुए थे, वो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर उसे खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वे तुरंत उनके सामने से उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे हटाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। This is the true account of Jesus healing the paralytic or healing the man with palsy. The miracle is so important that the Holy Spirit repeats it in Luke and Matthew and Mark. When the Holy Spirit repeats this parable 3 times, it means it is very important for us to receive this word. I will be using portions of scripture from all 3 gospel accounts. In this miracle, Jesus not only healed the paralytic, Jesus also saved him.
और ये जो है एक अगर यीशु के बारे में सच्चाई को बताता है कि यीशु ने किस तरह उस लकवे के रोगी को चंगा किया। ये एक जो चमत्कार है वो पवित्र आत्मा यहाँ पर हमें दिखाता है कि लूका रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार, तीनों में हमें ये देखने को मिलता है। और जब पवित्र आत्मा 3 बार किसी चीज को बताता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और सुसमाचार तीनों सुसमाचार का जो हम देखते हैं मत्ती, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में, तीनों में इस बात को बताया गया है। सो इस जो चमत्कार को यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह ने खाली लकवे के रोगी को चंगा ही नहीं किया परंतु उसे बचाया। The first words that Jesus spoke to the paralytic are in Matthew chapter 9 and verse 2. Son, be of good cheer. That's what Jesus wants to say of you. Be of good cheer. Be of good cheer. Be of good cheer. Jesus wants to save you. Jesus wants to heal you. Jesus wants to deliver you. Be of good cheer. और हम मत्ती रचित 9 के उसमें दूसरा वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने पहला शब्द जो लकवे के रोगी को बोला वो है, हे पुत्र ढांढस बंधा, ढांढस बंधा। और यही शब्द यीशु मसीह आज आपसे कहना मांगता है कि ढांढस बंधा, मेरे पुत्र मेरी पुत्री ढांढस को बंधा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, यीशु मसीह आपको ढांढस बांधना चाहता है, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। तो जितने लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा कहना मांगते हैं कि हे पुत्र हे पुत्री हो ढांढस को बांधो। In Acts 3:26, it says, unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning every one of you from his iniquities. The biggest blessing that you can receive from Jesus is to turn from your sins, to forgive your sins, and to save you. Jesus saved the man with palsy, and Jesus wants to save everyone that comes to him. और प्रेरितों के काम में हम देखते तीसरा अध्याय और उसका 26वां वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। तो सबसे बड़ी एक आशीष जो हम यीशु मसीह से पा सकते हैं, या हमने पाया कि अपने पापों से फिरकर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, खाली क्षमा नहीं किया, हमें बचाया। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमें पूर्ण रूप से क्षमा किया और उससे हमें निकाल कर खड़ा किया। हालेलुया। In Acts 10:38, it says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. Jesus was anointed by God. He went around doing good and healing. Jesus went around doing good and healing. Be of good cheer. Jesus went about doing good and healing. Let that get into your spirit. Jesus went around doing good and healing. और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां वचन जो बहुत ही सामर्थी वचन है, वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक है कि पिता ने, खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया ताकि वो चारों ओर जहां कहीं पर भी जाए वो लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे और सब कुछ अच्छा करे। तो आज आपको ढांढस बांधना है, क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। अपनी आत्मा में इस बात को आने दे कि यीशु मसीह चंगा करने, अच्छा करने के लिए हमारे बीच में, हमारे मध्य में उपस्थित है। Where did Jesus get the power to heal? Jesus withdrew himself into the wilderness and prayed. And then the scripture says the power of the Lord was present to heal them. Jesus prayed, and the power of the Lord was present to heal them. The power of the Lord is present to heal and save you right now, right here. The power of God will rest on us in proportion to how much we draw near to God. We could say much prayer, much power, little power. After returning from prayer, okay, that's
और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ कि यीशु मसीह के पास जो सामर्थ था, जो जो अभिषेक था चंगा करने के लिए, वो कहाँ से आया? जब वो मत्ती में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने जब उपवास को किया और जब वो मरुभूमि में, मरुस्थल में उसने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का सामर्थ जो है वहां पर उसके साथ था, जिसने उसे चंगा करने के लिए अभिषेक किया। तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को जो सामर्थ मिला, वो किससे मिला? वो प्रार्थना करने के द्वारा मिला। हालेलुया! वो परमेश्वर का सामर्थ आज मेरे और आपके बीच में है, जो आपको बचा सकता है, चंगा कर सकता है। अभी इसी वक्त यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके ऊपर ठहर कर आपको इसी घड़ी चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है और बड़े अद्भुत काम हमारे लिए कर सकता है। और मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा प्रार्थना उतनी ज्यादा सामर्थ, और जितनी कम प्रार्थना उतनी कम सामर्थ। तो जितना हम समय प्रार्थना में बिताएंगे, उतने हम प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में और अपने द्वारा औरों के जीवन में देखेंगे। हालेलुया! After returning from prayer, Jesus was in a house, and there was a large crowd in the house. The crowd filled every room and space in the house. A large crowd surrounded the house. This miracle happened in a house. This miracle happened in a home. Miracle happened when Jesus preached in a home. Jesus did the miracle in a home where people live. Jesus did the miracle. Now, sometimes, most of the time, sinners, the unsaved, refuse to go to church. We have to take Jesus to the people outside the church doors. Maybe we can invite them to our homes and share Jesus, and a miracle will happen. They'll get saved and healed. और हम देखते हैं कि जब वो प्रार्थना से, वो मरुभूमि की जो प्रार्थना थी, वो 40 दिन की जो प्रार्थना और उपवास जब यीशु मसीह ने किया, उसके बाद जब वो आया, तो बड़े सामर्थ्य के काम हुए। और जो ये हम जिस बात के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर जो एक घर के अंदर इतने लोग थे, उस घर के चारों तरफ, घर के अंदर पूरी तरह से लोग भरे हुए थे। ये जो चमत्कार हुआ, ये एक घर में हुआ, एक जो है घर में हुआ, जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रचार किया और बड़े लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तो यीशु मसीह का जो ये चमत्कार था, वो एक घर में हुआ जहाँ लोग रहते थे। कई बार हम देखते हैं, और अधिकतर समय जो पापी मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो चर्च आना नहीं चाहते। तो हमें यीशु मसीह को उन तक लेकर जाना है। हमें चर्च से बाहर निकलकर परमेश्वर को, यीशु मसीह को लोगों के साथ बाँटना है। हमें उन्हें अपने घर में इनवाइट करना है, ताकि हम उनके साथ परमेश्वर की गवाहियों को बाँटें, परमेश्वर को बाँटें। हालेलुया! ताकि जो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है, वो गवाहियों के द्वारा उनके जीवन में भी गवाही उत्पन्न हो, वो बचाए जाएँ, चंगे हो जाएँ और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। In Matthew 18:20, it says, "Where two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. If two or three are gathered together in my name, I'm in the midst of them. If two or three are gathered together in my name, Jesus will be in the house and miracles will happen." Jesus was in a house, and four men brought the paralytic to Jesus. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 20वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित ही होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। 2 या 3, हालेलुया! परमेश्वर ने यहाँ बहुत बड़ी एक प्रार्थना सभा की बात नहीं करी। परमेश्वर ने यहाँ पे एक पूरी कलीसिया की बात है। परमेश्वर ने कहा, जब 2 या 3 मेरे नाम से केवल इकट्ठा होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। यीशु मसीह उस घर में उपस्थित था, जहां पर वो 4 लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आए। In Mark chapter 2 and verse 3, it says there were four men. There was four men, each carried one corner of the bed. There were four men. There were four men. Understand that there were four. Sometimes miracles take we. Sometimes miracles take we. Sometimes Jesus wants to get us involved in the miracles. Sometimes miracles takes we. In this case, there were four. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय के 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर 4 लोग थे। वो चारों ने उस बिस्तर के एक-एक कोने को पकड़ा हुआ था। ध्यान से सुनिए, वहां पर 4 लोग थे। कई बार हम
सोचते हैं हमारे जीवन में मिरेकल हो, हमारे जीवन में चमत्कार हो। एक हम सोचते हैं, लेकिन कई बार जो चमत्कार है वो बहुत लोगों के बीच में होता है। हालेलुया! कई बार हम सबको परमेश्वर वो चमत्कार में, हालेलुया, उसमें चाहता है कि हम उसको देखें ताकि उसके नाम की गवाही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं 4 लोग, कोई एक अकेला व्यक्ति जिसको चंगाई चाहिए था, केवल वो व्यक्ति नहीं था, उसके साथ उसके 4 दोस्त लोग और थे। How can we help to bring miracles to pass? How can we help to bring healing, salvation, and deliverance to people? We can pray as an individual. We can pray personally. In James 5:16, it says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Your prayers count. Your prayers count. Your prayers can bring healing, salvation, and deliverance to others. If you don't pray for your family and loved ones, who will? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसे जो है चमत्कार हो सकता है, कैसे चंगाई हो सकती है, कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे छुटकारा हो सकता है लोगों का। सॉरी। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, व्यक्तिगत तौर पे जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, याकूब की पत्री 5वां अध्याय है और उसका 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाएं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया! यहाँ पर ध्यान दें, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके द्वारा की गई एक छोटी प्रार्थना भी बहुत बड़े कामों को कर सकते हैं, बहुत बड़े सामर्थ के कामों को आप एक छोटी प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, चंगाई, उद्धार और छुटकारा दूसरों के जीवन में संभव है। और यदि मैं आपसे पूछना मांगते हैं, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुवे के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन उसके लिए प्रार्थना करेगा? We can pray corporately. We can pray in a group. Deuteronomy chapter 32 and verse 30 says, one can chase 1,000 and two can put 10,000 to flight. There's much power when we pray together. There's much power when we pray together. Actually, when you pray personally, you're not alone. You're not alone. There's four. There's you, there's the Father, there's the Son, and there's the Holy Spirit. But this is why Satan attacks marriages so strongly. What would happen if a husband and wife pray together in unity? What would happen if the parents and children could pray together in unity? There would be more power. Miracles would happen. People would be saved, healed, and delivered. So we can be involved in miracles if we come out to corporate prayer. There's power when we pray together. और अभी तक मैंने आपको व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बताया। अब एक सामूहिक प्रार्थना, जब हम अधिक लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, इस व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 30वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हालेलुया, ये मैं आपके लिए पढ़ते हैं, यदि उनकी चट्टान ही उनको ना भेज देती और यहोवा उनको दूसरे हाथ में ना कर देता तो ये कैसे हो सकता था? उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। हम देख सकते हैं जब हम इकट्ठा होके प्रार्थना करते हैं, वहां पर और भी ज्यादा सामर्थ्य को देखते हैं। हालेलुया! जब आप अकेले व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, वहां पर भी 4 लोग उपस्थित होते हैं। एक आप, एक पिता, एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा, 4 लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। हालेलुया! We और can मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शादी है, क्यों जो है शैतान उसमें कार्य को करता है? क्योंकि जब पति-पत्नी आपस में प्रार्थना करते हैं, तो क्या बड़ी सामर्थ्य वहाँ होती है। जब बच्चे और माता-पिता मिलके एकता में प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर बड़ी सामर्थ्य होती है, चमत्कार होते हैं, छुटकारे होते हैं, चंगाई होती है। यही कारण है क्योंकि आज पति-पत्नी के बीच में प्रार्थना नहीं है, बच्चों के बीच में प्रार्थना नहीं है, इसलिए शादी, मैरिज जो है में आज शैतान काम करता है। We can be involved in miracles if we share Jesus by witnessing and handing out tracts. In John chapter 4, verses 35 through 38, it says, say not ye, there are 4 months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, ready to harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit unto eternal, that
both he who sows and he who reaps may rejoice together. And herein is that saying true, one sows and another reaps. I sent you to reap that whereon you bestowed no labor. Other men labored, and you have entered into their labors. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम चमत्कार का हिस्सा हो सकते हैं यदि हम यीशु मसीह के गवाह बने और यीशु मसीह को दूसरे के साथ बांटें। आइए देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय का 35वें से 38वें वचन में हम पढ़ेंगे। और उसमें इस प्रकार से लिखा, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, काटने वाला मजदूर पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाले और काटने वाले दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वे खेत काटने के लिए इसलिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। आमेन। Notice there are two types of laborers in the harvest field of the Lord, sowers and reapers. What if the sowers didn't sow? What if the reapers didn't reap? The person that sowed is not necessarily the same person who reaped. Sometimes we enter into another's labors. Sometimes it takes we to bring someone to the Lord. The reason that I hand out tracts is to sow a seed in a person's heart so the Holy Spirit can work on that seed to bring salvation. और ये ज़रूर यहाँ पर हम ज़रा ध्यान से देखें, जो बोने वाला और काटने वाला 2 व्यक्तियों के 2 तरह के मज़दूरों के बारे में बात हुई है। तो सोच कर देखिए, यदि बोने वाला बोए नहीं और काटने वाला काटे नहीं तो क्या होगा? और ये भी ज़रूरी नहीं है जो बोता है वो ही काटे, या दोनों जो मज़दूर हैं एक ही जैसे हों। कई बार काटने वाला जो होता है, जिसने किसी और ने आके बोया और कोई और आके उसको काट रहा है। तो कई बार जो होता है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है किसी के जीवन में बदलाव के लिए, जहाँ परमेश्वर का बीज ऑलरेडी डाला हुआ है। कई बार परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया जो ट्रैक्स है उनको बाँटने के लिए, ताकि मेरे द्वारा एक बीज उस व्यक्ति के जीवन में पड़े, ताकि पवित्र आत्मा वो बीज के द्वारा उसके जीवन में उद्धार को कर सके। हालेलुया। This is a text that I received on a tract that I handed out many years ago. I don't know how many years ago it was. It was at least 6 or 8 years ago. And it said, John, this is Dean Geyer of Sweet Springs, Missouri. I don't know if you remember me, but I always saw you at the hog shows. You gave me a tract, God spoke and God wrote. And I've always kept that tract in my Bible. And I always think of you when I see it. So I was just calling to encourage you. What have you been doing? I don't know if this will get to you, but God bless. Did this text encourage me? Do you see yes, this text encouraged me. Do you see the power of a tract? Do you see the power of a gospel seed? This seed was planted at least 15 years ago. The Holy Spirit worked on that seed, and this man for all those years. My wife Julie and I hand out tracts everywhere we go. I think she hands out more tracts than I do. If we stop to fill up our car with gas at a station, she'll give a tract to everyone at the pump. And then she'll go in the store and give everyone a tract there. I'm proud of her. I can't wait to see in heaven all the fruit she will bear for handing out tracts. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, मुझे एक बार इस तरीके से मैसेज आया। मैंने कभी जो है ट्रैक को दिया था किसी को, हो सकता है कई साल पहले, 10-15 साल पहले। मुझे उसके बाद एक मैसेज आया और उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जॉन, ये मैं जो है डेन गोयर करके मिसौरी से एक व्यक्ति हूँ और मुझे नहीं मालूम क्या तुम मुझे जानते हो कि नहीं, पर मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे एक ट्रैक को दिया था जिस पर परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने लिखा, ऐसा करके एक ट्रैक था। और मैं हमेशा से अब अपनी बाइबल में रखता हूँ और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में याद आता है। तो ये मुझे बहुत ही जो है मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? और मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई बात आपके साथ हुई, और लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको आशीष करे। तो जब ये टेक्स्ट मुझे मिला, ये मैसेज मुझे मिला, तो क्या इसने मुझे प्रेरित किया? हाँ, मुझे उत्साहित किया। और
क्या इसमें परमेश्वर ट्रैक के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा या परमेश्वर के जो है बीज को, सुसमाचार के बीज को वहां पर देखा? हाँ, वो सब वहां था जो बीज मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में करीब 15 साल पहले एक ट्रैक्ट के द्वारा बोया था। पवित्र आत्मा ने उस पर काम किया इतने दिनों तक, हालेलुया, इतने सालों तक पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के हृदय में काम किया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब मैं और मेरी पत्नी कहीं भी हम बाहर जाते हैं, हमारे पास ट्रैक होता है, परमेश्वर के बारे में बाइबल होते हैं, वचन होता है जिसे हम शेयर करते हैं, जिसे हम बांटते हैं। और वो उसके पास हमेशा, मेरी पत्नी जूलिया के पास हमेशा होता है। जब हम गैस स्टेशन पे कार को या कार में गैस भरने जाते हैं, वहां पर भी वो परमेश्वर के वचन को लोगों को देते हैं। या हम कहीं स्टोर में जाते हैं तो वहां पर भी वो परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और मैं उन पर बहुत गर्व करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, और जो भी फल वो लेकर आ रहे हैं इस वचनों को बांटने के द्वारा, परमेश्वर उसके लिए उनको आशीष करे। The first tract I wrote was The Stain of Sin. I had it printed by Oosterhouse Printing, Publishing in Minneapolis, Minnesota. They've printed thousands of tracts and sent them out all over the world. I was speaking to Mr. Oosterhouse, and he said, John, I used to sell thousands of tracts in the Twin Cities, Minneapolis and St. Paul. Now we hardly sell any. This broke my heart. In Minneapolis, St. Paul, there are about 3.3 million people. This area in America is turning away from God. Millions will go to hell. Why? Christians are not witnessing. Christians are not handing out tracts. और जब मैंने पहले एक ट्रैक्ट को लिखा जिसका नाम था जो सिन, मतलब पाप रूपी एक धब्बा, उसे हमने प्रिंट कराया मिनेपोलिस मिनेसोटा में, और हजारों की तादाद में उसको प्रिंट कराया और पूरे दुनिया भर में उसको भेज दिया। और फिर मैंने मिस्टर ऑस्ट्रिस नाम के एक व्यक्ति से बात कर, उसने उसे भेजने के लिए और बांटने के लिए कहा। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा कि हमने सारे हजारों की तादाद में ट्रैक्ट्स तो कुछ जगहों पर भेजे, लेकिन कुछ जगहों पर, यानी कि वो मिनेपोलिस मिनेसोटा में अभी भी जो है नहीं गए हैं। और इसने मेरे दिल को तोड़ दिया, क्योंकि मिनेपोलिस एक जगह है जहां पर 3.3 मिलियन लोग हैं, और ये एक एरिया है अमेरिका का जो परमेश्वर से थोड़ा दूर है। पर इतने सारे लोग नर्क की ओर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मसीही लोग गवाही नहीं बांटते। वो परमेश्वर को लोगों के साथ बांटना नहीं चाहते। हालेलुया! केवल नामधारी मसीह के रूप में जो रह रहे हैं। Sometimes it takes we to bring about a miracle or to bring someone to the Lord. In 1 Corinthians chapter 3 and verse 7, it says, So then neither is he who plants anything, neither he who waters, but God gives the increase. Who gives the increase? Some plant, some water, but God gives the increase. See, it takes we. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चमत्कारों में परमेश्वर बहुत लोगों को इस्तेमाल करता है, खाली एक व्यक्ति को नहीं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आइए एक वचन को देखें, इसमें इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय और उसका 7वां वचन इसलिए इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो किसने बढ़ोतरी को दिया? वहां पर पौधे भी हैं, पानी भी है, लेकिन जो बढ़ोतरी है वो केवल परमेश्वर की ओर से है। किसी ने लगाया, किसी ने बोया, किसी ने जोता, लेकिन जो बढ़ोतरी है वो परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने इसमें अनेक अनेक लोगों को इस्तेमाल किया, बोने के लिए, जोतने के लिए, काटने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए। We get involved in miracles if we bring them to church, a church that preaches the gospel, that preaches Jesus Christ and Him crucified, that preaches the cross. In this miracle, it took 4. These 4 brought the paralytic to Jesus. That's what we must do, bring people to Jesus. Why? We can't save anybody. We can't heal anybody. We can't deliver anybody, but Jesus can. We must bring them to Jesus. Without the help of the 4, there was no way for this man to get to Jesus. There's no way for the unsaved to get to Jesus without the help of believers.
और कई बार परमेश्वर हमें मदद करता है कि हम उन चमत्कारों के भागीदार हो जाएं, हिस्सेदार हो जाएं। वो कैसे? लोगों को हालेलुया परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए, कलीसियाओं में लाने के लिए, हालेलुया सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, यीशु मसीह और उसने जो क्रूस पर किया उसके बारे में बताने के द्वारा, क्रूस के बारे में बताने के द्वारा। और जिस चमत्कार के बारे में हमने शुरू किया था, वहां पर 4 लोगों के बारे में बात किया जो एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाते हैं। और यही हमें करना है, लोगों को हालेलुया यीशु मसीह के पास लेकर आना है। और वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों को चंगा नहीं कर सकते, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, हमारे द्वारा छुटकारा नहीं हो सकता, केवल और केवल यीशु मसीह ये कर सकता है। तो हमें लोगों को यीशु मसीह के पास तक लाना है। यहाँ पर हम देखते हैं उन 4 व्यक्तियों की मदद के बिना ये व्यक्ति खुद से यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जो बचाए नहीं गए उन लोगों के लिए। यदि जो बचाए गए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, यदि वो जो ना बचाए हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि वो उन तक यीशु मसीह को ना लेकर जाए, तो उन्हें कौन बचाएगा? The unsaved are spiritually blind. They can't see Jesus. They don't know where Jesus is. We must bring them to Jesus. In 2 Corinthians chapter 4, verses 3 and 4, it says, "But if our gospel be hid, it is hid to them who are lost, in whom the God of this world, that Satan, has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." The unsaved are spiritually blind. They can't see Jesus. They don't know where Jesus is. We must bring them to Jesus. और जो लोग बचाए नहीं गए हैं, या जो लोग विश्वासी नहीं हैं, वो जो है कुछ तौर पे वो आत्मिक अंधों के रूप में है, क्योंकि वो यीशु मसीह को देख नहीं सकते, वो जान नहीं सकते कि यीशु मसीह कौन है। तो हमें यीशु मसीह के करीब उनको लेकर आना है। एक वचन को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय, तीसरा और चौथा वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर में बचाए नहीं गए हैं, वो आत्मिक तौर पे अंधे, क्योंकि इस संसार के हालेलुया ईश्वर ने इस संसार का जो हालेलुया रूल करता है, उसने इस इधर के लोगों को अंधा कर रखा है। तो वो यीशु मसीह को देख नहीं सकते, उनको मालूम नहीं है यीशु मसीह कहाँ है। तो हमें उन तक यीशु मसीह को लेकर जाना है। In Mark chapter 2 and verse 2, it says, Jesus was in a house preaching. Jesus was so anointed. Jesus was so full of the Holy Spirit. No sickness or disease could stand in the presence of Jesus. Jesus is here right now, willing to save, willing to deliver, willing to heal. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में को जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, उसमें लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह वहां पर सेवकाई कर रहा था, वचन की सेवकाई को कर रहा था। यीशु मसीह अभिषिक्त था, असामर्थ से भरपूर था, पवित्र आत्मा से भरपूर था। कोई भी बीमारी, कोई भी हालेलुया, कोई भी बीमारी उसके उपस्थिति में रुक नहीं सकती थी। यीशु मसीह आज हमारे मध्य में है, वो हमारे मध्य में है, वो हमें चंगा कर सकता है, ठीक कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। The four had great obstacles to bring the lost paralytic to Jesus. They had to get the paralytic to the house where Jesus preached. Did the four men carry this man on a bed for many blocks? Did they have to bring him a long distance in a cart pulled by a donkey or an ox? In those days, there were no ambulances as we know them. Despite this obstacle, the four did not give up. They continued on in faith. और हम देखते हैं 4 लोग जो उस लकवे के रोगी को लेकर आए, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह तक ले जाने के लिए। हालेलुया।
वो उसको कैसे लाए होंगे, क्योंकि उस समय में एम्बुलेंस जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। कितनी मुश्किलों से उसको लेकर आए होंगे, तो बावजूद इतनी मुश्किलों के उन्होंने वो जो है वहाँ पर अपना जो है अपना उम्मीद को नहीं छोड़ा, उन्होंने विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते गए और उस रोगी को लेकर, उस लकवे के रोगी को लेकर आए। They had to fight through the crowd to get to Jesus. Jesus was inside Peter's house preaching. Every room and space was full of people. There was a large crowd outside that completely surrounded the house. The four tried to move forward by faith. They cried out, "Make way, make way. We must get this man to Jesus." They pushed and elbowed forward. They fought inch by inch, but they could not get through. Think of the fear of the paralytic, the fear of the paralytic as they tried to move through the crowd. His bed was tossed and turned. Think of the alarm of the man on the bed. It had to stress out the four also. They had to be getting tired. Despite this obstacle, the four did not give up. They continued on in faith. और चलिए एक बार उनकी परिस्थिति को हम देखते हैं। जब वो इस विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, एक घर में था, पतरस के घर में था, प्रचार को कर रहा था, हर कमरा, वो जगह पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। बहुत एक बड़ी भीड़ घर में और उसके आस-पास थी, और वो लोग रास्ता जब बना रहे थे, विश्वास में बोल रहे थे, "रास्ता दो, रास्ता दो।" वो कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह तक पहुँचे। किसी तरह भीड़ से खींच-ताच के वो इंच और इंच प्रति इंच कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। सोच के देखिए, वो जो लकवे का रोगी था, उसको भी कितना तकलीफ हो रहा होगा, और इतनी तकलीफ के बावजूद वो 4 लोगों ने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, वो विश्वास में आगे बढ़ते गए। हालेलुया! They came up with another plan. There was a stairway on one side of the roof. Maybe they could lower the paralytic from there. How difficult was getting the man with the palsy up the stairs? How tired were they as they carried the man up the stairs? Despite this obstacle, the four did not give up. They continued on in faith. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके पास एक दूसरा योजना था कि चलो छत के रास्ते से उसको लेकर चलते हैं। कितनी मुश्किल होगी, क्या वहां पर जीना होगा, जो सीढ़ियां होंगी जिसके द्वारा वो लेकर जाएं उस व्यक्ति को जो बिस्तर पे है, चारों ने चार कोने से पकड़ा हुआ है, कैसे उसको लेके जाएंगे। कितनी मुश्किलें वहां पर थी, भीड़ थी जो उसको आने नहीं दे रही थी, उनको आने नहीं दे रही थी, लेकिन वो विश्वास में फिर भी आगे बढ़ते गए। Now they were on the roof. Most people had flat roofs in those days. Many people would sleep on the roof on the hot summer nights to catch a breeze. In some roofs, there was an opening so that the people could come up on the roof. And sometimes there was a covering that could be removed, but it also said they broke up the roof. Whatever they did to make an opening, it was not easy. It took some work, it took some effort. We must not give up when we bring people to Jesus, despite the obstacles, despite the inconveniences, despite what others think, despite how much time it takes. We must get them to Jesus. The four overcame the obstacles and they brought the man to Jesus. और छत पर जब वो उसको ले जाने लगे, तो वहां पर हो सकता है कुछ लोगों की उस समय में छत बिल्कुल सीधी होती थी कि लोग वहां पर सो जाएं ऊपर जाके। कुछ की छत ऐसी होती थी, खुली छत होती थी। कुछ की इस तरीके से ढकी होती थी कि उसको बाद में जो है खोला जा सके। लेकिन यहाँ पर उसमें इस प्रकार से लिखा है, वचन में लिखा है कि वो छत को उन्होंने तोड़ दिया ताकि वो नीचे को जा सके। हालेलुया! तो जो कुछ भी उन्होंने किया, हम देखते हैं उनको बड़ी थोड़ा मुसीबत हुआ, थोड़ा परेशानी हुआ, आसान नहीं था। इसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता है कि आप जब परमेश्वर के पास से लोगों को लाते हैं, भले ही परेशानी हो, भले ही मुसीबतें हो, भले ही लोग से क्या सोचें, कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन हमें उन्हें परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हालेलुया! और वो चारों लोगों ने जो है उस मुसीबतों को, उन परेशानियों को पार किया, और वो उस व्यक्ति को, लकवे से रोगी जो व्यक्ति था, उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। They lowered the paralytic to Jesus through the roof. This had to get everyone's attention. What did the four think? What did the paralytic think? What did everyone in the crowd think? What did Jesus think? All the people looked on it with anticipation. What would Jesus do?
what would Jesus say? और यहाँ पर जो है हर कोई सोच रहा था, हर कोई इसी परिस्थिति में था कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे, लकवी का रोगी क्या सोच रहा है, क्या भीड़ सोचेगी, क्या यीशु मसीह सोचेगा। सभी लोग जो है यीशु मसीह की ओर देख रहे थे कि अब यीशु मसीह क्या करेगा या यीशु मसीह क्या बोलेगा। It says, when Jesus saw their faith, Jesus saw their faith. Jesus saw their faith. Jesus saw their faith, not the faith of the paralytic, their faith, the faith of the four. The actions of the Amen. four were the evidence of their faith. They carried the paralytic through the crowds. They carried him up the stairs. They tore up the roof. They lowered the paralytic into the presence of Jesus. Jesus saw their faith. Jesus saw their faith. When Jesus looks at me, when Jesus looks at you, when Jesus looks at us, what does he see? Does he see our faith? If Jesus sees our faith, he will respond. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हालेलुया! उनके विश्वास को देखा। जो लकवे के रोगी था उसके विश्वास को नहीं, वो 4 लोग जो इतनी मुसीबतों से छत को तोड़कर जीने के रास्ते, सीढ़ियों के रास्ते या कुछ और रास्ते से उस लकवे के रोगी के व्यक्ति को यीशु मसीह की उपस्थिति में लाए। वचन कहता है यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। हालेलुया! आज यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है, मेरे विश्वास को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। और जब वो देखता है तो वो क्या देखता है? हमारे विश्वास को। वो आपके और मेरे अंदर विश्वास को देखता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है उसने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हालेलुया! जब वो विश्वास देखता है तो वो उत्तर भी देता है। हालेलुया! Now Jesus addresses the paralytic in Matthew 9:2. It says those words were, Son, be of good cheer. That's what God is saying to each of you. Be of good cheer. Be of good cheer. Be of good cheer. Jesus is here to save, heal, and deliver. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 9वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में कहता है हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे शाप क्षमा हुए। हालेलुया! तेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, तेरे ऊपर अब कोई पाप नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। आज आप ढाढ़स बांधे क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे मध्य में है, आपको बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। Then Jesus said, Son, thy sins be forgiven thee. Jesus did not say, Be healed. Jesus did not immediately say, Arise up, rise and take up the bed and walk. Jesus said, Son, thy sins be forgiven thee. Why? और यहाँ पर यीशु मसीह ने जैसे ही उसको देखा कहा हे पुत्र ढांढस बांध क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए। उसे ये नहीं कहा कि चंगे हुए, तू चंगा हुआ। उसने तुरंत जो है नहीं कहा कि अपना उस बिस्तर ले और उठ और चल। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था वहां पर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव है, नकारात्मक हैं। परमेश्वर उनके सोच को सोचते हुए इस बात को वहां पर कहा। Jesus wanted to address a negative group in the crowd. In Luke chapter 5, verses 21 through 24, it says, And the scribes and Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answering unto them said, What reason you in your hearts? Whether it is easier to say, Your sins be forgiven you, or say, Rise up and walk, but that you may know that the Son of Man has power upon earth to forgive sins. He said unto the sick of palsy, I say unto you, arise, take up your couch, and go into your house. और पर यीशु मसीह ने कुछ बातों को इसलिए कहा क्योंकि उसने उनकी सोच को, जो कुछ लोग वहां पर थे, उसकी सोच को जाना। ये देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन से जब हम पढ़ते हैं 24 तक, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा,
उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आमेन। The scribes and Pharisees, the religious leaders of Israel, were bitterly opposed to Jesus. They were afraid of his popularity and power. These hostile scribes and Pharisees had come early and pushed their way to the front of the crowd. These religious leaders didn't care if Jesus healed anyone. They wanted to find fault with Jesus. They said, "Who is this which speaks blasphemies? Who can forgive sin but God alone?" This would be true if Jesus was only a man, but Jesus was not just a man, he was God. और यहाँ पर हम देखते हैं शास्त्री और फरीसी के बारे में, जो उस समय के कुछ धार्मिक जो है जो कुछ समूह हुआ करता था, जो यीशु मसीह को कड़ाई से विरोध करता था, क्योंकि वो उसकी जो उसकी सामर्थ है और जो उसका चहीते लोग हैं, उनसे उनसे वो घबराते थे। तो वो जो है शास्त्री और फरीसी वहां पर जल्दी आते थे, ताकि वो जो है कुछ भी उनकी यीशु मसीह की बुराई को पकड़ सके या देख सके। हालेलुया! तो ये जो लीडर्स थे, ये जो लोग थे, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन चंगा हुआ या यीशु मसीह के द्वारा कौन बचाया गया। लेकिन वो उसमें कमी ढूँढते थे, उसके हर एक कामों में, अच्छे कामों में भी कमी ढूँढते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है या इस प्रकार से बातें करता है? कौन परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? और ये सच हो सकता था यदि यीशु मसीह खाली एक व्यक्ति होता, परंतु यीशु मसीह एक व्यक्ति नहीं था, परंतु परमेश्वर भी था। The unsaved want to believe that Jesus is only a man. They don't want to believe he's God, because if he's God and they sin, God's judgment may come onto them. The unsaved want to sin. They don't want to follow God's laws or commandments. They want to be free to do what they want. This is why they are so hostile when anyone mentions Jesus. और जो लोग बचाए नहीं गए हैं, वो चाहते हैं, वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह केवल एक व्यक्ति है। वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है, और वो एक परमेश्वर है जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, और जो बचाए नहीं गए हैं, क्योंकि वो वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे वो जीते आए हैं, और परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, और जैसा वो रहना चाहते हैं सांसारिक तौर पे, वैसा वो करना चाहते हैं। इसीलिए वो यीशु मसीह को हालेलुया परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। Jesus knew what the evil scribes and Pharisees thought. So Jesus boldly said, "Son, your sins are forgiven." To tell them and tell us, He is God. He is God. This hostile attitude did not stop Jesus, but a hostile spirit can be a hindrance. Many times our teaching and preaching of the gospel can be hindered by negative or hostile spirits. और यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी के जो नकारात्मक जो सोच था वो जानता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे शाप क्षमा हुए। ये उनको भी बता रहा था और हमें भी बता रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर है। कई बार जो ये नकारात्मक जो स्वभाव था, लेकिन नकारात्मक स्वभाव चारों तरफ था, लेकिन वो यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। ये एक रुकावट तो हो सकता है, लेकिन ये रोक नहीं सकता। हालेलुया! I want you to notice something. The paralytic did not have a hostile or negative spirit. He got saved and healed. The scribes and Pharisees were hostile towards Jesus and they received nothing. Jesus can be in the house, but if you have a hostile or negative attitude, you will receive nothing. और यहाँ पर मैं आपको बताना माँगता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जो लकवे का रोगी था, उसके अंदर कोई नकारात्मक भाव नहीं था, इसलिए वो बचाया गया और चंगा हुआ। परंतु शास्त्री और फरीसी, उनके मन के अंदर यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ बातें थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। Jesus also said, "Son, thy sins are forgiven thee," because he wants us to know that not being saved is a more serious problem than any physical challenge that we might have. Jesus saved the paralytic first, then healed him physically.
Sin and sickness are closely related. When sin came into the world, sickness and disease came along with it. The sick man's paralysis was due to his sinful life. Every sickness that you have does not necessarily come from your sin, but it can. Let's do everything that we can to stop sinning, and I can almost guarantee that our health will improve. और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वो चाहता है कि हम इस बात को जाने कि बचाया जाना बहुत जरूरी है। खाली शारीरिक चंगाई नहीं, परंतु आत्मा की चंगाई भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह ने रोगी को, लकवे के रोगी को बचाया, तो उसने उसे खाली शारीरिक रूप से चंगा नहीं किया, उसके पापों को भी क्षमा किया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो बीमारी और पाप एक दूसरे से बहुत ही करीब है, क्योंकि जब पाप इस संसार में आया तो बीमारी भी इस संसार में आई। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है कि बीमारी पापों के द्वारा हो, लेकिन ये हो सकता है। तो हमने वो करना है कि हम पाप को जितना अपने जीवन से दूर रखें, वो हमें करना है, ताकि हम अपने शारीरिक चंगाई को भी प्राप्त करें। Jesus did not let the opposition of the scribes and Pharisees stop him. He dealt with them and moved on to perform the miracle for the paralytic. Jesus looked the paralytic right in the eye and he spoke these power packed, life changing words: Arise, take up your bed, and go to your own house. Arise, take up your bed, and go to your own house. Arise, take up your bed, and go to your own house. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी लोगों का विरोध भी यीशु मसीह को कार्य करने से रोक नहीं पाया, और उसने वहां पर एक चमत्कार को उस लकवे के रोगी के लिए किया। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी की ओर देखकर कहा, बहुत ही हालेलुया सामर्थ से भरे शब्दों को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आमीन। उसने इस प्रकार से कहा, उठ, अपने खाट को उठा और अपने घर को चला जा। एक बार और मैं इसे दोहराना चाहूंगा, उठ, अपनी खाट को उठा और अपने घर को चला जा। The man immediately rose because he was instantly healed. He bent down and picked up his bed. Once it carried him, now he carried it. All that knew him knew that before his encounter with Jesus, he could not walk. Now he could walk, and it was obvious to all. और वो व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ, उसको तुरंत जो है चंगाई मिली, उसने उठाया। उसमें इस प्रकार से लिखा है, वचन में इस प्रकार से लिखा है, वे तुरंत उनके सामने से, 25वें वचन में लिखा है कि वे तुरंत उनके सामने से उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर को चला गया। ध्यान से देखिए, अब तक जो बिस्तर उसे उठा रहा था, उसने उस बिस्तर को उठाया। हालेलुया। और जितने लोग उसे जानते थे कि यीशु मसीह से मुलाकात से पहले वो चल नहीं सकता था, लेकिन अब वो चल सकता है, और वो चल कर गया। आमेन। हालेलुया। They were all amazed and they glorified God. They glorified God. They glorified God. Think of the man who got healed. He glorified God. Think of the poor. They glorified God. Think of the huge crowd. They glorified God. The house had been a house of sickness and pain and suffering. Now it was a house of praise. Now it was a house of God. Now it was a house of joy. Arise, get up, go out and get them like the poor. Arise, get up, and go out and get them like the poor and bring them to Jesus. और वहां पर देखते, जब ये बात होने के बाद सब चकित हो गए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और उन्होंने इस प्रकार से कहने लगे, आज हमने अनोखी बात को देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। उस व्यक्ति के बारे में सोचे जो चंगा हुआ, उसने परमेश्वर की महिमा को किया। जो 4 लोग उसे उठा कर लाए थे, उसने परमेश्वर की महिमा को किया। और जितना भीड़ वहां पर था, उन सब ने परमेश्वर की महिमा को करा। हालेलुया। और जो घर, एक घर था बीमारी का, दुख का, तकलीफ का, अब वो घर जो है, हालेलुया, महिमा का एक घर बन गया, परमेश्वर का एक घर बन गया, आनंद का एक घर बन गया। तो आज मैं आपसे कहना मांगता हूँ,
कि उठ, खड़ा हो और बाहर जा। और जैसे वो 4 लोग उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए, ऐसे ही आप भी हालेलुया परमेश्वर तक लोगों को लेकर आए। यीशु मसीह की गवाहियों को लोगों के साथ बाँटे और अधिक से अधिक यीशु मसीह को लोगों के हालेलुया पास तक लेकर जाएँ, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, ट्रैक्स के द्वारा, और जो कुछ मुमकिन है आप वो करें, ताकि परमेश्वर के पास लोग आए, आप उन 4 जैसे होने पाएँ। हालेलुया। Maybe your house has been a house of sickness, pain, and suffering. Now let's make it into a house of praise, a house of आमेन, cheer. आमेन। और हो सकता है आपका घर अभी तक बीमारी का एक घर हो, कर्ज का एक घर हो, दर्द का एक घर हो, तकलीफ का एक घर हो, और आज हम उसे आनंद का एक घर बनाते हैं, महिमा का एक घर बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य एक घर बनाते हैं, परमेश्वर का एक घर बनाते हैं। Jesus said, be of good cheer, be of good cheer. That's what Jesus is saying to you right now. Be of good cheer. Jesus is in your home right now, and he wants to turn your home that was a home of sickness and pain and suffering. He wants to turn it into a house of cheer and praise. He's here अब to touch you and heal you and deliver you. और यीशु मसीह कहता है कि ढांढस बांध, और वो चाहता है कि आपका घर महिमा का घर होने पाए, आनंद का घर होने पाए, हालेलुया, चंगाई का एक घर होने पाए, छुटकारे का एक घर होने पाए। जो अब तक बीमारी का, कर्जे का, दुख का और अन्य बातों से भरा हुआ एक घर था, अब केवल आनंद के स्रोते वहां बहने पाए। No, Jesus brought salvation to that man, and Jesus wants to bring salvation right now to you in your home as you're hearing this message. और यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आया। वही यीशु मसीह आज चाहता है कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके प्रियजनों के बीच में उद्धार आए, वो बचाए जाएं। If you're not saved, if you don't know Jesus as your Lord and Savior, please pray this prayer after me. और यदि आप यीशु मसीह को अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, यदि आपके जीवन में भी ऐसी बात है, तो आज इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं आपके पास उस प्रिय यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins and be the Lord of my life. और यीशु मसीह में अपने पापों की क्षमा को आपसे मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं। I don't put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता जो मैं करता हूँ, परंतु मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह और यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, मैं उसको विश्वास करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life, and I receive it, and I thank you for it. और मैं आपसे उस अनंत जीवन को मांगता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैंने उसे ग्रहण किया और पाया, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और तमाम पाप से मुझे छुटकारा दें।